और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि 5 रियासतों में 824 असेंबली सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें तमिलनाडु में एक ही मरहले में इलेक्शन होंगे, जबकि तमिलनाडु में 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके अलावा केरल में एक ही मरहले में वोटिंग होगी और केरल में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। साथ ही पुडुचेरी में भी एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे, जबकि मगरबी बंगाल में 8 मरहलों में वोटिंग होगी। मगरबी बंगाल में पहला मरहला 27 मार्च को होगा, इसमें वोटिंग। तो वहीं असम में 3 मरहलों में वोट डाले जाएंगे और असेंबली इलेक्शन के जो नतीजे हैं उसका ऐलान भी किया जाएगा 2 मई को। 18 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा लेंगे, वोट डालेंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी में असेंबली इलेक्शन होने हैं और उसी को देखते हुए आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर मगरबी बंगाल की कुल 294 सीटों पर 8 मरहलों में वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि पहले मरहले में 27 मार्च को वोट डाला जाएगा और खास बात यह है कि ये जो मगरबी बंगाल में वोट डाले जाएंगे वो 8 मरहलों में डाले जाएंगे। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर 234 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। केरल की बात की जाए तो 140 सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तमिलनाडु में भी 6 अप्रैल को ही वोटिंग होगी 234 सीटों पर। West Bengal first phase, issue of notification 2nd March. Last date of nominations 9th March. Scrutiny of nomination 10th March. Call of candidature 12th March. Date of poll 27th March. Second phase again 30 assembly constituencies. Issue of notification 5th March. Last date of nominations 12th March. Scrutiny of nominations 15th March. Last date of withdrawal 17th March. Date of poll 1st April. Third phase 31 assembly constituencies. Issue of notification 12th March. Last date of nominations 19th March. Scrutiny of nominations 20th March. Last date of withdrawal 22nd March. Date of poll 6th April. Phase 4. 44 constituencies. 44. Issue of notification 16th March. Last date of nominations 23rd March. Scrutiny of nomination 24th March. Last date of withdrawal 26th March. Date of poll 10th April. Fifth phase 45 assembly constituencies. Issue of notification 23rd March. Last day of nomination 30th March. Scrutiny 31st March. Last date of withdrawal 3rd April. Date of poll 17th April. Phase 6. 43 constituencies. Issue of notification 26th March. Last date of nomination 3rd April. Scrutiny of nominations 5th April. Last date of withdrawal 7th April. Date of poll 22nd April. Seventh phase 36 assembly constituencies. Issue of notification 31st March. Last date 7th April. Scrutiny of nominations 8th April. Last date of withdrawal 12th April. Date of poll 26th April. Can we move to the last phase? Issue of notification 31st March.
in all 35 constituencies. Issue of notifications 31st March. Last date of nominations 7th April. Scrutiny of nominations 18th April. Last date of withdrawal of candidature 12th April. Date of poll 29th April. General election to Assembly of Tamil Nadu 2021. All elections to 38 districts consisting of 234 assembly constituencies shall be held in a single phase as follows. Issue of notification 12th March. Last date of nomination 19th March. Last scrutiny of nominations 20th March. Last date of withdrawal of candidature 22nd March. Date of poll 6th April. Now I go to Kerala. All elections in 14 districts consisting of 140 assembly constituencies to be held in a single phase as follows. Issue of notification 12th March. Scrutiny of nominations 20th March. Last date of withdrawal of candidature 22nd March. Date of poll 6th April. Puducherry, 2 districts, 30 assembly constituencies to be conducted in a single phase as follows. Issue of notification 12th March. Last date of nomination 19th March. Scrutiny of nomination 20th March. Last date of withdrawal 22nd March. Date of poll 6th April. As I said in the beginning only, the counting shall be done on 2nd May 2021. तो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि किस तारीख में कहां पर चुनाव होने हैं। एक तरीके से बिगुल बच चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे अलग अलग जगह पर नुमाइंदे जो हैं वो जुड़ चुके हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ शरफुद्दीन गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं, सिद्धार्थ हमारे साथ चेन्नई से जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ सुपाता कोलकाता से जुड़ चुके हैं। आप तीनों का इस्तकबाल है। और सबसे पहले मैं शरफुद्दीन आपसे जानना चाहूंगा, असम को लेकर मैं समझना चाहूंगा कि 3 अलग अलग मरहलों में चुनाव होंगे। पहले मरहले को 27 तारीख में और 27 मार्च में, दूसरा मरहला 1 अप्रैल और तीसरा मरहला 6 अप्रैल, यानी कि 3 चरणों में असम में वोटिंग होनी है। क्या कुछ वहां के जो अवाम है और जो लीडरान है उनका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? आज सुबह से ही असम में एक हलचल लगी हुई थी, जो क्या चुनाव का क्या डेट फिक्स किया जाएगा। तो अभी चुनाव के डेट फिक्स होते ही आपका यहाँ पे पूरा पुरजोश आपका सभी दलों के लोग अभी पुरजोश आपका निकल आए हैं बाहर। और जगह जगह में आपका एक प्रसार अभियान भी अभी शुरू हो जाएगा, कल से तेज शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अभी जो सभी राष्ट्रीय दल के, जैसे कांग्रेस के भी जितने आपका जो राजनीतिक नेता है सेंट्रल से आ रहे हैं, और आपका भाजपा के जैसे आपका अमित शाह जी और आपका प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रोज दौरे में आ रहे हैं। ऐसे अभी पूरी तरह से और ज्यादा अभी हलचल शुरू हो जाएगा असम में। ठीक है, सिद्धार्थ का रुख करते हैं। सिद्धार्थ, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आदर्श आचार संहिता जो है नाफिज हो गई है। एक तरीके से हम देखें तो अब तमाम चीजों पर पाबंदियां नाफिज हो जाती है और खासतौर पर अब ये देखना अहम होगा कि जो चुनाव है तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो एक ही मरहले में चुनाव यहां पर होना है। आपसे समझना चाहेंगे इसके ऊपर अभी तक किसी का कोई रिएक्शन आया है कि सिर्फ एक ही मरहले में इतनी सारी सीटों पर क्यों कराया जा रहा है इलेक्शन? बिल्कुल, ये एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं, उनके यही डिमांड था। जब ईसीआई की टीम और सुनील अरोड़ा जी जब चेन्नई आए थे, इनका तमिलनाडु के सारे पॉलिटिकल पार्टीज का यही डिमांड था कि यहाँ के जो पोल्स हैं एक ही फेस में हो जाए